Hello. Hello. Yeah, hi Vrinda. Hi, everyone can hear me, right? Yeah. Yeah. So let's start with our today's session. I hope everyone is ready. So, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Hello, and very good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this wonderful, beautiful, and auspicious day that brings together so many special people like you for the event called Rotai Hunar District Event based on Rutue Hunar to know and develop your Rotrak skill. This is an initiative by Rotaract Club of Khamgaon in collaboration with Rotaract Club of Nagpur Vision, Rotaract Club of JIT Nagpur, Rotaract Club of Jalgaon West, Rotaract Club of Godavari, Rotaract Club of Nashik Metro, Rotaract Club of Loom City Malegaon, Rotaract Club of Bhusawal Tapi Valley, and Rotaract Club of Srimati S.M. Agrawal Institute of Management, Charlesgaon. I am Retractor Vrinda Patel, Chairperson and MOC for today's event, and with my co-host, co-MOC, Retractor Ankita Israni. We also have Retractor Ujwal Soni, who is our technical coordinator. Now, I would like to call Host Club President, Protractor Sachin Purva, for call to order of session, Rotai Hunar. Meeting call to order. Thank you, Protractor Sachin. Now, I again request you to come forward and give the welcome speech. Good afternoon to one and all. I, Rotractor Sachin Pawar, President REC Khamgaon, Rotract Club of Khamgaon, welcomes you all to our auspicious event of Rotai Hunar. We, the members of Rotract Club of Khamgaon, hosting a webinar for the first time and have also collaborated with 8 clubs of RI District 3030 with the motto of doing this webinar to know what is the basics of Rotrack, activities of Rotrack, and relationship between Rotrack and your life. Few days ago, RI District 3030 launched a district event named Rotu E Hunar. So based on that event, we launched this webinar called Rota E Hunar. So yesterday there was Nelson Mandela Day. So Nelson Mandela once told that everything is impossible until it's done. So now it's done. It's now like feeling some like happy that now I am having a good sleep tonight. Like we hosted this event Thursday evening, and on Friday we collaborated with all the clubs. Saturday we floated the message, and on Sunday we are in front of you all. So this webinar will cover 3 topics, which are Know Your Rotrack Better by IPDR Shantanu Agarwal sir, Me and My Rotrack Activities by DCI Rotarian Virendra Patrikar sir, Rotrack A Vibrant Way to Change Your Life by Dr. DGN Anand Jhunjhunwala sir. And I would like to thank all the keynote speakers for coming and joining us for the today afternoon session. Thank you everyone and welcome to Rotai Hunar. Thank you very much. Thank you, Sachin, for your beautiful speech. Now, I request our DRR Abhishek Goel to please come forward and speak few words of wisdom. Thank you, Vrinda. Respected DG nominee Dr. Anand Jhunjhunwala, District Committee Interact Chair Virendra Patrikarji, IPDR Shantanu Agrawal, DRR nominee Sanail Ahmed, ADRR Hemangi and Zia Khan, all the ZRR, all the Rotary Club President Secretary and the Rotary Club President Secretary and the Rotractors of 3030. A warm good afternoon to one and all.
I always believe that training is an integral part of the any organization. अगर किसी organization को आगे बढ़ना है तो timely training सबसे जरूरी होती है, और हम लोग we have fortunate to have a trainer like IPDRS शांतनु अग्रवाल and वीरेंद्र पात्रिकर जी, जिन्होंने समय समय पर हमेशा आगे बढ़कर रोड ट्रैक के लिए टाइम निकाला है और हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है काफी फ्रूटफुल होगा और इससे जो भी नॉलेज मिलेगा आने वाले समय के लिए बहुत लाभदायक होगा। और जितने भी क्लब ने पार्टिसिपेट किया है मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रोटरी क्लब ऑफ खामगांव ने जो इतनी अच्छी शुरुआत करी है रोटा ए हुनर सभी क्लब को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाने की इस वर्चुअल दौर में, इसकी भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ उन्हें। और आने वाले समय में रोटरी क्लब ऑफ खामगांव को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी 50 वर्ष की जर्नी में जितने भी लोगों ने इस क्लब को आगे बढ़ाया उनको तहे दिल से रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, DRR Abhishek Goyal, for your remarks. Now, I would like to call Director Shobik Basu from Rotary Club of Nasik Metro to introduce our IPDRR Shantanu Agrawal. Good afternoon, everyone. Myself, Protractor Shobik Basu, Secretary, Rotary Club of Nasik Metro. Today, I feel very honored to introduce our immediate past district road track representative, Shantanu Agrawal. Sir is a person of few words and believes in hard work. He resides in Jalgaon city, Maharashtra, and is a proud road tractor and Rotarian of Jalgaon West Club. Speaking about Sir's educational background, he has completed his masters in commerce as well as MBM, besides NET, SET, DTL, and is also a CA finalist. Sir has won several prizes in quiz, debates, personality contest, and sports event at college, university, state, and national level. Sir also loves cricket. He has played for Maharashtra cricket team in under 15 category and have also played for university cricket team for 3 years. By profession, Sir is a professor in a reputed coaching institute at Jalgaon for the past 10 years. Now about his road track journey. In 2014, Sir joined RAC Institute of Management and Research, Jalgaon. In 2015, he was the club's president. Then in 2016, he served as zonal road track representative, ZRR, and again in 2017's tenure as well. In the tenure of 2018-19, Sir was designated as the district joint secretary. And finally, in the tenure of 2019-20, he was our district road track representative. In the current tenure of 2020-21, Sir is designated as Secretary Projects in CERIC MDIO. Lastly, talking about Sir's achievements in road track, he was the best ZRR in 2017 and 18. In the same tenure, his zone was also declared as the best zone. Then outstanding DRR citation from RSA MDIO, outstanding DRR citation also from CERIC MDIO, a whooping total of 17 awards won by RID 3030 at various events and from the MDIOs. Thank you, sir, for gracing us with your presence. And today, we are really looking forward to learn a lot from you. Thank you. Now I request IPDRR Shantanu Agrawal sir to start his session. Over to you, IPDRR Shantanu Agrawal. Thank you so much, Shobik, for this wonderful introduction. And thank you, Vrinda and Ankita, for being so generous MOCs. First of all, I would like to request that, can I share my screen? Kindly make me co-host so that I can share my screen. Thank you so much. So, first of all, DGN Dr. Anandji and Club President Sachin, Honorable Secretary, all other collaborating club presidents, secretaries, then Rotarian Virendra Patrikar ji, all the other Rotarians, Rotractors, and all the district council members. A very good afternoon, all of you. So friends, आज जैसे हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा ये ओकेजन है कि साल के स्टार्टिंग में 9-10 क्लब मिलके एक इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और रोट्रैक के बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं।
मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जैसे कि हमारी लाइनअप है, मैं आप लोगों को थोड़ा रोट्रैक के बारे में इन डिटेल बताऊंगा और उसके बाद हमारे साथ वीरेंद्र जी और आनंद जी भी जुड़ेंगे जो हमें गाइडेंस देंगे रोट्रैक को लेके। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। इज द स्क्रीन विजिबल? एनीवन? थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा टॉपिक है नो अबाउट रोट्रैक, और आप लोगों को पता होगा कि ये साल की शुरुआत में कुछ बदलाव भी आए हैं। मैं कोशिश करूंगा वो बदलाव के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम रोटरी की बात करें, रोटरी के अंदर, रोटरी के स्ट्रक्चर में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल है। सबसे पहला रोटरी इंटरनेशनल, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का पार्ट दिखता है। देन द रोटरी फाउंडेशन, जो फंडिंग से लेके सारी चीजें कवर करती है, उसके मैनेजमेंट को देखती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रोटरी एंड रोट्रैक क्लब्स। तो हमारा रोटरी का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं और जिनकी बदौलत आज हम रोटरी और रोट्रैक की मूवमेंट को पूरी दुनिया में इतने बड़े लेवल पे देख पा रहे हैं। अगर हम देखें दोस्तों, हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई है रोटरी की तरफ से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट ये अपने आप में कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये जस्ट एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जो रोटरी और रोट्रैक क्लब की फंक्शनिंग को देखती है विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। उसके एरिया स्कोप में जो जो रोटरी और रोट्रैक क्लब्स आते हैं उसका वो गवर्निंग देखने का काम करती है, उनको सुपरवाइज करती है। दोस्तों रोटरी और रोट्रैक क्लब्स जो है, दे आर ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस का मतलब ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बट विद द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय रोटरी इंटरनेशनल। दोस्तों जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज का मैप दिया है। किस तरह से हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है आपको विजिबल है। तो आप देख सकते हैं, आपको 4 मेजर कलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और वो डिपिक्ट कर रहा है जोन्स, और जोन के अंदर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स का बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच वी बिलोंग, दैट इज RID 3030, आपको सेंट्रल मोस्ट रीजन में दिखाई दे रहा है इंडिया के। इसके अलावा बाकी भी आपको डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल में है, वो आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसके अलावा नेपाल, भूटान में एक डिस्ट्रिक्ट है 3292, और साथ में श्रीलंका में दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज 3220। ये फंक्शनिंग करने के लिए इजी वे में एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया और कोशिश की गई कि इफेक्टिवली काम किया जा सके रोटरी और रोट्रैक लेवल पे। दोस्तों जैसा मैंने बोला, डिस्ट्रिक्ट्स ये सिर्फ गवर्निंग बॉडी है, इनका अपना कोई अस्तित्व देखा नहीं जाता, जस्ट बताने के लिए कि हाँ ये रीजन को बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। रोटरी और रोट्रैक क्लब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे लेकिन मैंने बोला विद द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय रोटरी इंटरनेशनल। इसके आगे अगर दोस्तों हम बढ़े, मैं आप लोगों को रोट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, रोटरी और रोट्रैक इन सभी के जो हेड होते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अंडर एक कमेटी फॉर्म की जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी। इस कमेटी में 2 पार्ट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, एक को चेयर्स का और दूसरा मेंबर्स का। दोस्तों ये DRC कमेटी ही रोट्रैक को चलाने का काम करती है, इसीलिए ये कमेटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं को चेयर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लोगों का रोल इंपॉर्टेंट है, एक DRCC जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी चेयर भी बोलते हैं, और दूसरा DRR दैट इज डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक रिप्रेजेंटेटिव। DRCC ये एक रोटेरियन होना चाहिए और DRR ये एक रोट्रैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला, ये डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी के को चेयर्स है। चेयर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहता है, ये को चेयर्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल नंबर्स होने चाहिए, रोटेरियंस एंड रोट्रैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल 10 लोगों की कमेटी है,
तो वो 10 लोगों में 5 रोटेरियंस और 5 रोट्रैक्टर्स का होना जरूरी है। सो रोट्रैक का फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी ही सुपरवाइज करती है। अगर दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी, तो डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी को अपॉइंट करना ये काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का है। उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोट्रैक कमेटी को फॉर्म करें। दोस्तों पर्पस की अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी क्यों बनाई जानी चाहिए, बनाने का पर्पस होता है ताकि रोट्रैक क्लब्स को सपोर्ट किया जा सके, उनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग हो सके, उनको एडमिनिस्टर किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों रोट्रैक कमेटी में कौन होते हैं, तो बेसिकली रोट्रैक्टर्स रोटेरियंस तो होने चाहिए, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि जिनको रोट्रैक का अच्छा नॉलेज है, क्लब लेवल पे जिन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, एल्यूमनाई रह चुके हैं, साथ ही साथ जिनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है, उन लोगों को हम इस रोट्रैक कमेटी में रखें। इसके अलावा दोस्तों रोट्रैक कमेटी के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो भी एक्टिविटीज रोट्रैक की हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करना, ये काम रोट्रैक कमेटी का होता है। देन टू प्रमोट इंगेजमेंट, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना, कम्युनिकेशन करना और रोट्रैक मूवमेंट को बढ़ावा देना, ये काम भी रोट्रैक कमेटी का होता है। देन टू प्रमोट रोट्रैक्टर्स बाय इनवाइटिंग देम एट वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स देखते हैं, रोटरी कॉन्फ्रेंस होती है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, असेंबली होती है, उसी तरह से रोट्रैक के भी इवेंट्स होते हैं। सो वहाँ पे उन्हें इनवाइट किया जाना चाहिए, साथ में उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए लीडरशिप और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। इसके अलावा रोट्रैक कमेटी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जो भी रोट्रैक के क्लब ऑफिसर्स हैं एंड रोट्रैक एडवाइजर्स हैं, जो जनरली रोटेरियंस होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें गाइडेंस देना, ये काम भी रोट्रैक कमेटी का होता है। इसके अलावा सुपरवाइज करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है रिगार्डिंग रोट्रैक इन द डिस्ट्रिक्ट, उसको भी देखने का काम रोट्रैक कमेटी का रहता है। सो दोस्तों ये है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम बात करें को चेयर्स की, जैसा मैंने आपको बोला, को चेयर्स को अपॉइंट करने का काम दोस्तों गवर्नर के हाथ में होता है। डीआरसीसी, जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक कमेटी चेयर, क्योंकि एक रोटेरियन होने चाहिए, उनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। डीआरआर का अपॉइंटमेंट इलेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, जो रोट्रैक क्लब्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट है वो डीआरआर को इलेक्ट कर सकते हैं, या जो गवर्नर है इन कंसल्टेशन विद अदर डीजी डेलीगेट्स वो डीआरआर को अपॉइंट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कमेटी के को चेयर्स होते हैं जो रोट्रैक को साल भर चलाने का काम करते हैं या उनकी एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जनरली ये रिकमेंड किया जाता है रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से कि आगे की प्लानिंग रोट्रैक की रेडी रहे। जैसे हम रोटरी के लेवल पे देखते हैं डीजी इलेक्ट, डीजी नॉमिनी डेसिग्नेट अपॉइंट किए जाते हैं, उसी तरह से रोट्रैक में भी सक्सेशन प्लान रेडी होना चाहिए, आने वाले लीडर्स को तैयार करना जरूरी है। सो ये रिकमेंडेशन रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से दी गई है। अगर दोस्तों हम बात करें आगे, रोट्रैक में इस साल से काफी बदलाव आया है। आप लोग पिछले कुछ समय से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, बट वो जो बदलाव है इफेक्ट में आया है फ्रॉम 1 जुलाई 2020। अब इसमें आप सबसे पहला पॉइंट जो देख सकते हैं, कोई भी रोट्रैक क्लब दोस्तों पहले होता था कि वो रोटरी के एक प्रोग्राम में आता था। रोटरी इंटरनेशनल ने जो प्रोग्राम के साथ शुरू किया था 1968 में, उनका पर्पस था कि यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, यंगस्टर्स की स्किल्स एनहांस होनी चाहिए, इस पर्पस से रोट्रैक का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बट दोस्तों जो बदलाव इस साल सबसे इम्पोर्टेंट आया है वो ये कि अब रोट्रैक क्लब भी रोटरी इंटरनेशनल का एक मेंबर है, और जिस तरह से रोटरी क्लब वर्क करता है उसी तरह से रोट्रैक क्लब को भी कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बड़ी जो एक बड़ा बदलाव आया है वो है एज लिमिट का। आपको ये तो पता है कि एक रोट्रैक्टर होने के लिए कम से कम 18 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, और पिछले साल तक जो अपर एज लिमिट थी वो 30 साल की थी, लेकिन इस साल वो लिमिट हटा दी गई है। अब क्लब और डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से बायलॉज में चेंजेस करके डिसीजन ले सकते हैं कि वो रोट्रैक्टर्स के लिए अपर एज लिमिट क्या रखना चाहते हैं। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से गाइडलाइंस में कहा गया है कि यंग एडल्ट्स
तो यंग एडल्ट्स आप अपने हिसाब से उसकी एज लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा बदलाव दोस्तों, अभी तक होता था कि कोई रोटरी क्लब ही रोटरैक्ट क्लब को स्पॉन्सर कर सकता था, लेकिन ये भी इस साल से बदलाव आया है। एक रोटरैक्ट क्लब या 2-3 रोटरैक्ट क्लब मिलके भी एक नया रोटरैक्ट क्लब स्पॉन्सर कर सकते हैं। वैसे ही अब रोटरैक्ट क्लब इंटरैक्ट क्लब को भी स्पॉन्सर कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, और जैसे कि आरआई की थीम है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज, तो वो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम भी अपने स्किल्स, अपने हुनर को ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, एक और बदलाव जो आया है, अब रोटरैक्ट क्लब को ज़रूरी नहीं है कि उसके पास स्पॉन्सरिंग क्लब हो। विदाउट स्पॉन्सरिंग क्लब ऑल्सो नाउ अ रोटरैक्ट क्लब कैन सर्वाइव इन द डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स होते हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो रोटरैक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट रोटरी कमेटी में रखें। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से, तो वो कमिटीज में भी रोटरैक्टर्स को चांस दिया जाए, ताकि एक बॉन्डिंग डेवलप हो और साथ ही साथ रोटरैक्ट और रोटरी में रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो। ये उसके पीछे का रीजन है। तो दोस्तों, ये बड़े बदलाव जो रोटरैक्ट में इस साल से देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें एवेन्यूज ऑफ सर्विस, आप सभी को पता है लास्ट ईयर तक 5 एवेन्यूज ऑफ सर्विस हुआ करते थे। मैं अगर रोटरी की बात करूं तो, जिसमें क्लब सर्विस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देन न्यू जनरेशन, कम्युनिटी सर्विस और इंटरनेशनल सर्विस आता था। मैं अगर रोटरैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो एवेन्यूज ऑफ सर्विस है वो इस साल से एप्लीकेबल है। पहला, क्लब सर्विस। पर्पस होता है क्लब को स्ट्रॉन्ग बनाना, मेंबर्स में बॉन्डिंग ज्यादा क्रिएट करना। दूसरा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्विस, करियर स्किल्स को एनहांस करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए पीडी सर्विस को बढ़ावा दिया जाता है। देन कम्युनिटी सर्विस, कैसे हम अपने सोसाइटी में लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे काम किया जाता है। देन इंटरनेशनल सर्विस, कैसे हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, दूसरे रोटरैक्टर्स के साथ जो ना सिर्फ हमारे रीजन में बल्कि दूसरे कंट्रीज में है, उनके साथ नेटवर्क को बढ़ावा दे सकते हैं। देन दोस्तों, 2 जो नए एवेन्यूज ऐड हुए हैं इस साल से, उसमें एक है फाउंडेशन। आप सभी को पता है रोटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है फाउंडेशन को, बट रोटरैक्ट लेवल पे उतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। सो आरआई की तरफ से गाइडलाइंस जो आई है उसमें फाउंडेशन को भी एक एवेन्यू ऑफ सर्विस के तौर पे कंसिडर किया जाने लगा है। सो पर्पस है फंड रेजिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जाए और रोटरैक्टर्स को रोटरी फाउंडेशन के बारे में मिल जाए, ताकि वो भी रोटरी फाउंडेशन को अपनी तरफ से कुछ डोनेशन करें। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट सर्विस जो ऐड हुई है, दैट इज फाइनेंस सर्विस। आप लोगों को पता ही है कि 2022-23 से पर रोटरैक्टर आरआई ड्यूज लिए जाने वाले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से क्लब लेवल पे फाइनेंशियल सर्विस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की गई है। तो फोकस है कि कैसे क्लब एक्टिविटीज के लिए फंड्स जनरेट किए जाए, कैसे उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाए, इसको प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर एवेन्यू ऑफ सर्विस ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब रोटरैक्ट के लिए 6 एवेन्यूज ऑफ सर्विस है। लास्ट ईयर तक हम 4 कंसिडर करते थे। जो 2 नए ऐड हुए एवेन्यूज, एक फाउंडेशन और दूसरा फाइनेंस सर्विस। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें रोटरीज एरिया ऑफ फोकस की, लास्ट ईयर तक ये 6 एरियाज ऑफ फोकस हुआ करते थे, लेकिन इस साल से जो एक एडिशनल एरिया ऑफ फोकस आया है, दैट इज सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट। बाकी 6 आप लोगों को जैसे थोड़ा आइडिया है उसको ऑलरेडी, पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट और सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, रोटरी इंटरनेशनल की भी कोशिश है कि हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर ज्यादा काम करें और कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाए। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक पॉइंट पे ज्यादा हाईलाइट देना चाहूंगा। आप सभी को पता है रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के बारे में, RILM, जिसको बेसिकली जो हमारे RIPE है, शेखर मेहता, जो प्रमोट कर रहे हैं कि लिटरेसी को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, और टारगेट रखा गया है 2025 तक हमारे इंडिया को
100% लिटरेट बनाने का, तो उसमें हम रोट्रैक्टर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोशिश हमने करनी चाहिए कि कैसे हम गांव-गांव तक पहुंच के लिटरेसी को बढ़ावा दें, और जहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग एजुकेशन, वहां पे हम वो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो हम लोगों का भी ये फोकस होना चाहिए कि कैसे हम लिटरेसी की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ रोटरी इंटरनेशनल थीम के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, खासकर रोट्रैक्टर्स को, कि ये थीम क्या होती है, क्यों इसे बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर साल रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बदलते हैं, तो हर प्रेसिडेंट की अपनी थीम होती है, और जिस थीम को ध्यान में रखते हुए साल भर वो काम करते हैं। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनके मिशन होते हैं, वो उनके थीम के थ्रू वो बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, रोटरी ईयर 2019-20 में हमारी जो रोटरी इंटरनेशनल की थीम थी, वो थी रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड, जो मार्क मेलोनी की थीम थी। इस साल दोस्तों 2020-21 में जो रोटरी इंटरनेशनल की थीम है, वो है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे RIP इस साल के हैं, हॉल्गर नेक, ये उनकी थीम है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हर साल ये थीम बदलती है, और नए जो अगले साल के रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होंगे, उनकी थीम इससे कुछ और अलग होगी। वैसे ही दोस्तों, हम जब रोट्रैक की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थीम बनाई जाती है। जो DRR होता है, वो अपनी थीम लॉन्च करता है और कोशिश करता है वो थीम के हिसाब से ही आगे काम करे, और वो उसमें डायरेक्शन करने का काम है। आप देख सकते हैं 2019-20 की डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक थीम थी स्ट्रेंथनिंग द रूट्स, और इस साल अभिषेक गोयल की जो थीम है वो है ग्रोइंग टुगेदर। सो दोस्तों, ये जो थीम्स होती है, एक तरह से हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि कौन से डायरेक्शन में हमें काम करने की जरूरत है और क्या थीम हम लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और जो भी बदलाव इस साल आए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और जो रोट्रैक्टर्स आएंगे या अभी है, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। स्पेशल थैंक्स टू सचिन एंड टीम एंड टू ऑल द कोलैबोरेटिंग क्लब्स, कि आप सभी ने यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ वर्ड्स बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, IPDRR Shantanu Agrawal. We really got to know complete structure of Rotrack Club and their services. So now moving forward, let me call Rotractor Gaurav Deshmukh from Rotrack Club of Jalgaon West to introduce our DCI, Rotarian Virendra Patrikar. Hello, am I audible? Yes. Okay. Hello, I'm Rotractor Gaurav Deshmukh from Rotary Club of Jalgaon West, President. And it's my pleasure to introduce Rotarian Virendra Patrika sir. He is a postgraduate in electronics instrumentation with specialization in biomedical instrumentation. Happily married to Rachna ji and are blessed with two kids, Kanat and Sukriti. After 20 years in IT trade, networking, and IT consulting services, he is diversified in his scientific lab instruments and IT software business. He is the founder CEO of his latest venture www.indiopd.com. Virendra sir is associated with Vidarbha's leading IT trade body, that is VCMDWA, as a founder treasurer. He is an educationist and runs a pre-independence era 84 years old educational trust, Janta Shikshan Mandal, since last 18 years. Virendra sir is a hardcore Rotarian since 2006 and was secretary and president of Rotary Club of Nagpur Downtown. He was a member of District Conference Core Committee in 2017 and 18, District Protractor Chair in 1819, District Raila Chair in 1920, and currently he is the District Interact Chair 2021 with additional responsibility as a District Chair website. Now I call DCI Virendra Patrika sir to start his session. Over to you, sir.
Am I audible, guys? Am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes. Yeah, thank you so much, respected DGN, Dr. Anand Jhunjhunwala ji, Rotaract Club of Khamgaon President, Sachin, Secretary, ADRRs, ZRRs, past DRR, immediate past DRR, Shantanu, a wonderful session, Shantanu, very enlightening. DRR, Abhishek, DRRN, Saniel, and all the Rotaract and Rotary district officers, president, secretaries, a very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Thank you. So may I have the permission to share my screen, please? Can we go ahead with the presentation? Surely, sir, you can share your screen. Can you see that? Yes, visible. Okay, fine. Just a minute. I think I'll minimize this Zoom windows. Okay, great. Friends, as I mean, the tagline Rotaract Hunar. Hunar is something, you know, it's a mixture of or a combination of not only one attribute of your personality trait, but 5 attributes, I believe. Hunar is a combination of Kala, Karigiri, Kaushalya, and Gun and Yogata. ये सब 5 चीजें मिलके आपका हुनर बनता है. And this is an apt thing for the new generation to take care of. Friends, in brief, my agenda of having a discussion with you today is what is new generation? In short, then what Rotary youth programs are in brief again, the current Rotaract programs, and the last one is scaling up or redefining programs. Friends, I am not here to teach you anything, but I'm here to have a dialogue with you. I'm trying to open up the way you think. I'll try to open up the way you look at Rotary and Rotaract, and the way you look up at your capabilities and personality traits. As you all know, or maybe I would need to know, new generation of Rotary International program have 6 elements: the Rotaract, the Interact, the Youth Exchange, the Service Exchange, the RILA, and the Alumni. Okay, you are a part of the first entity called Rotaract. You are also part of the entity where Youth Exchange and RILA take care of. Friends, this is my way of, giving you some inputs and opening up your, thought process, opening up your mind, right? So, when we buy a book, most of us try to go through the, first page, second page, and we go to the index and find out what are the contents of the book. Book में किताब में क्या है, कौन से chapters है, कितना बड़ा है, क्या एक general हम एक overview लेते हैं. So being a part of this wonderful organization called Rotary International, I want you guys to have a look at what Rotary International is all about. We have around, just a minute, we have around 36,875 Rotary clubs, out of which 96 are in our district, right? Then we have 1,70,000, around 1.2 million Rotarians. And in our district, I'm talking about our Rotarians, we are 5,109. Rotaract clubs, there are 10,900 global Rotaract clubs. Our district, we are 117. Now this plus 151T, I'll brief you at the end of this table. Rotaractors, there are 260,000 Rotaractors. We are only 2,400 in our district. This is the status of 17th July 2020. Interact clubs, there are around 15,000 in India. There are 169 in our district. Now, inbound youth exchange programs, out of the 9,780 global
IYE programs. Only 26 were in our district. And the outbound youth exchange, out of 6,925 across the globe, we were a mere 28. The RILA participation ratio, out of the 2,32,654 Rotractors or RILA participants, we were 971. So friends, the reason to give you this status is you should know, you should be aware of what is the organization we are part of and what is the percentage we are going to impact the program for Rotary International, so that next time we look at activities, our scale is defined by the urge with which we want to go ahead. हम बोलते हैं ना हमारे इसमें कितना जिद है काम करने का, बड़ा होने का, ये स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा. और ये जो रोट्रैक क्लब्स है और इंट्रैक क्लब्स है 151T है, these are terminated clubs. These are terminated clubs. So apart from 117 Rotrac clubs, there are 151 terminated clubs in our district. Now, what are these terminated clubs? They are terminated clubs who have not reported on the RI website. If you know colleges, institutions, or departments in your own colleges who are in a state of termination, please try to reactivate them. Now, governance. When you talk of governance, the Rotrac, as Shantanu has briefed, you know, it is governed by the current DRR Abhishek Goyal. Now, the reason to show you this chart or this lineage is to make you aware that Rotary is an organization which is professionally managed. Who are these professionals? These professionals are none other than Rotarians and Rotractors like you. You are a part of the management consultant for the Rotary International's image and PR in the industry. I'll tell you why I'm touching this point. 3 years back in 2017-18, in the March of 18, you know, we decided to, as a district Rotrac chair, we decided to ramp up the Rotrac movement in our district 3030 and take it to the best possible heights. At that time, we floated applications and we received 5 to 6 applications for the post of DRR. Friends, and those DRRs, after interview, all are right in front of you. They have been struggling to take Rotrac movement to the next height. They have successfully taken Rotrac movement in Rotary District 3030 to great heights since 1918-19. This is the lineage of your district Rotrac chair. I am sure you guys, all the Rotractors, will give best possible to take this ahead with the help of these district leaders. Now, what are Rotracts? You know, it's institution-based, it's community-based. Now, what are engagements a Rotractor can have? They can have it at club level, they can have it at district level, they can have it at national level, or they can involve themselves in international activities as well. It is up to your thought process, up to your hunar, where you take the activities to. Now, before you plan projects, before you even sit on the design table or a discussion table, ponder upon these few points. First is try to have image building exercise, bring innovativeness on the table, improve public relations, have positive and sustainable impact in the society. For doing any project, you ensure that you do community assessment. I'm sure you understand what I mean by community assessment. जिस गांव में पानी की जरूरत नहीं है, पहले से ही पानी है, उस गांव में जाके कुआं न खोदे. जिस गांव में पहले से ही बहुत झाड़ है, बहुत ग्रीनरी है, वहां जाके झाड़ लगाने में मतलब नहीं है. जिस स्कूल में पूरी फैसिलिटीज है, उस स्कूल में काम करने की जरूरत नहीं है. So the reason to give you these examples is you have to do assessment, you have to do survey properly, help of Rotarians and take help of Rotarians and local experts. Rotarians are not only senior in age, but they are also resourceful in their own way. They have done similar projects for years and decades together. They can help you out in the process of identifying the right project
and the right venue also. You have to define the project objective and Rotary's areas of focus. This is very important. And you should learn to collaborate with local organizations and authorities. This makes a lot of difference. If you go to a village, it will be a good idea to share your opinions and objectives and project with the Gram Panchayat. If you are doing projects in 4 or 5 villages, say tree plantation, say 1,000 tree plantation in 5-6 villages, it would be good to reach Tehsildars, right? So reach the Tehsildar, you can get help of Rotarians. The collector of Nagpur, Honorable Shri Ravindra Thakre is a honorary member of my club. Mayor of Nagpur is a honorary member of our club. So you can catch hold of Rotarians in your respective regions and find out how well connected they are. Now, how do you look at projects? After bringing it on the design table, discussion table, try to find out which area this project will fit into. You can go back and refer to a citation manual where you will get a view of what type of activities you can take care of. Abhishek, I think, right? Abhishek, you can share this type of manual to these guys right in the start of the year, so they know what they want, what they are expected from themselves. Now, I'll brief you about the impactful projects which your district did. The Rotrac, I'm talking of Rotrac district did at the city and district level. Earlier I discussed, right? You can do projects on city level, district level, national level, international level. Now, what we now would discuss is few projects at club and district level. Okay, so we have a drafting dreams project where, in a short period of say 7-8 days, 5 days, you do volumes of projects to help the community and do your own club and professional development. Now at the district level, we regularly hold Nirmalya Sankalan and collection and for eco-friendly Ganesh Visarjan. It's a brilliant activity, a week-long activity the day Ganesh Visarjan, Sharda Visarjan starts. This is one of the best projects people, Rotary actors and Rotarians can get involved into. Then birthday celebrations of club members with underprivileged. Try to enthuse your own colleagues, even non-Rotaractors, to have birthday celebrations in and around underprivileged students and see the happiness on their face, see the twinkle on their face. You will be blessed forever. Digital literacy awareness campaigns in tribal and rural areas. Friends, if you have the resources to reach villages, I encourage you to take this up. Find out what type of digital literacy awareness can be done in their end. Theater workshops as fundraising projects for projects. Various projects you plan for. Rallies. These are rallies like Tiranga Rally to promote Rotary movement. You can have rallies even for health. You can have rallies even for education. You can have rallies even for COVID awareness. You can have rallies even for washing school awareness in and around schools. You can volunteer for audiobook creation for blind. You can get volunteer for various walkathons and Udan program in Nagpur. You can encourage your fellow Rotaractors or your college friends to be part of this type of activities. It's not necessary that only Rotaractors get involved. You too can get involved. Your friends also can get involved into it. Garden with plantation of medicinal flowering plants is one of the good projects which I had witnessed. Then washing schools. Please visit government and ZP schools. There is a horrible status of water and sanitation here. Just find out whether you are resourceful enough to provide wash basins and water facilities in the schools, ZP and government schools. Now, I recommend you to get in touch with your Rotary clubs with your own resources and find out whether they can give you financial support, in bringing up these facilities in these needy schools.
Now the latest COVID awareness camp, you can have Rotaract e-Seva during COVID also. Each one teach one, adopt a village. You can adopt a village, find out the illiteracy ratio there, find out the number of illiterate adults there, and maybe once in a week or once in a fortnight or 2 to 3 hours in a month, you can devote some time and bring happiness on their faces and try to teach the adults. Then promotion of cloth bags. You know, we want to eradicate use of plastics. We want to minimize use of plastics. This should be your year-long activity. You can catch hold of what you call self-help groups. You know, give them clothes, get cloth sponsored in huge numbers. क्या बोलते हैं हम उसको, ठाण बोलते हैं उसको, है ना, उसमें से रोटरी क्लब से स्पॉन्सर कराओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलना इसको हमको सिला के दो, और यू कैन प्रमोट दिस टाइप ऑफ बैग्स इन डिफरेंट इन स्कूल्स, इन शॉप्स, in malls, branded with Rotary emblem. Now Rotaract projects look up at national and international level. What do we have on national level? We have South Asia summits. We have Mahadan in every March. Every year during World Rotaract Week, we have various competitions circulated through Rotary and Rotaract district channels. We have different events and district conferences. Guys, you all are new generation guys. You are tech savvy. You are Facebook savvy. You use every possible social media on this earth. Every information and inputs are available to you at the touch of a button, I'm sure. On the national and international level, we have theater workshops at fundraising projects. Mahadan in every March during World Rotaract Week. Then you have Rotaract pre-conventions during international Rotary conferences. Those who can, I believe, should attend these Rotaract pre-conventions. It's an experience of its unique kind. Then Inter-Rota. This happens once in 3 years. This year it was postponed and now it will be held in June 21 in Hong Kong. Try to find out. I'm sure DRR Abhishek will keep you posted about all these activities. You also look out for new activities from different districts. Every district have their own way. As Shantanu has briefed you, there are 35 plus 38 districts in our own country. Just try to find out how many, the name of the districts and the new generation activities that they are taking up. Youth exchange, inbound and outbound. We have international exchanges of students. So those who come in our country, they are called inbound programs. Those who go out of our country, they are called outbound programs. So international exchanges of students take place for students or youth between 15 to 19 years of age. They are sponsored by Rotary clubs. There are two types of programs, long-term and short-term. Long-term is 1 full academic year for which you get credit back in India as well as in other countries. Short-term are for from several days to 3 months. All these programs are on reciprocal basis. That means if you go somewhere else out of this country, you or your Rotary district, the Rotaract district, need to accommodate somebody else from that country. This is called reciprocal basis. Similarly, for service exchange also, there are programs. They are called service exchange programs, but they are customizable. Okay, if you are a doctor, if you are pursuing medicine sciences, right? You can go there for enhancement of your skills, specialization in a particular field. You can sponsor the clubs, or it is normally self-sponsored. And the age group for it is up to 30 years of age. You can be a part of service exchange. This can be for any professional programs. This can be for, people who are doing chartered accountants, who are already CAs, but who want to improve on their international certification program like FCAs. They can also go for service exchanges, but it comes at a cost. So you have to sponsor your own finances. This need not be reciprocal.
So if you go out for service exchange, you don't have to facilitate, you don't have to accommodate somebody coming from outside. You have to pay for your own expenses, even the stay and food expenses when you go out in another country. Now, I'm sure all of you are aware of RILA, right? It is nothing but Rotary Youth Leadership Award. It was adopted in the year 1971. Am I late? Yeah, I have 5-6 minutes. Okay. Now, how was RILA started? You should be aware of it. In Australia, once Princess Queen Elizabeth, then princess in some 1959 or sometime she visited Australia. She was emperor there, she was princess then. The youth in Australia, they held a program, small youth program to welcome the princess. Okay. And that program became so popular in the world that Rotary International adopted that program 10 to 12 years later in the form of RILA, Rotary Youth Leadership Award. You know, that is the fun of RILA. Now, I'm sure you must be aware of what RILA is all about. It gives you an immense, take my word, it gives you immense opportunity to develop your own personality in personal and professional level. You know, you can shine in many aspects in which you think you should. The programs are very well structured. It is as per RI guidelines. You know, it is normally held in two categories. One is 14 to 18 and then 19 to 30. Okay, the group 14 to 18, you know, they are very naive. They don't know what is going to come in their life. So they need to have a separate session. Whereas the youth in 19 to 30, they know what they are going to do in life. They are already onto some bandwagon. They are doing something. They have chartered their own path of career or professional services. So they need different training, different inputs, different programs, different plans. What is the length? Normally 1 day to 1 week is sufficient for a RILA program. Okay. Now this is very critical while you hold a RILA program. You know, participant selection, counselor selection, counselor training, curriculum content, and curriculum design. Not all contents are possible for all the RILAs across the district. Every demography has their own requirement. So you have to plan accordingly. Now, what are alumni? You know what alumni means? A person who has already out of an institution. So similarly, we have Rotary alumni. Now, today you are a Rotractor. After 1 year, you are done with the college. You go out of the college. If it is an institution-based Rotaract club, you are nowhere. You are not a Rotractor. You are not a Rotarian. But officially, you are a Rotary alumni. You can still get connected with the Rotary world. Now, friends, in the action item in my first or second slide, I told you we have some action item upon you. Now, these are the new generation chart. I have added this column for this. What is the action I want you to take care of this year? Because of pandemic, the mobility has been restricted. The diversity of the project has been restricted. The financial support system everywhere is dwindling. The capacity of you to reach people has dwindled. People are not even talking to each other in physical format, even on phones. There is continuous bombardment of electronic connect like this eZoom session to all of us, including mobile. Now, what type of projects do we do in such times? We have to have various ideas. We have to grow from here. What is leadership? Leadership is not only getting a post. It also means developing your next generation. So friends, I want action items on Rotaract, Rotractors, Interact clubs, and RILA participation. Whenever this RILA in physical format can happen, yes, I want participation from you guys. Okay. Now, when I say my last agenda item is scaling up or redefining programs, I want a very special ears from all of you.
When I say I want something from you, this is scaling up or redefining programs. I want district Rotrack help, 3030 help in connecting with the Interact clubs this year. I'm telling you why. Because the way Rotary takes care of Rotrack world, I want in this pandemic to take care of the Interact world. Because there is a restriction in mobility of all the Rotary clubs, of all Rotary presidents and district officers. So I want Rotractors in respective cities and towns to reach various schools and form Interact clubs. I want you to take care of the kids there, to inculcate a sense of leadership in them. I will try to provide as an district Interact chair. I promise you I'll provide you with all possible resources necessary and you want for forming Interact clubs in the district. Let us be a part of the movement which we started in 2017-18 for the Rotrack world of 3030. Our Rotrack movement, with the help of all the DRRs, have reached very big and good heights in the Rotary international world. I am sure you can be a part of this movement even for our Interact clubs. You, with the experience and the wisdom your DRRs have, you can do wonders on this front as well. Friends, when I say scaling up, I want you as Rotrack, as matured kids, as matured new generation guys. Hello? Hello? I want you guys to take care of the Interact clubs. Okay, I want you to handhold. I want you to take some proactive projects with Interact clubs in schools. So, dosto, as I said earlier, leadership is not a position or a title. It is action and example. Thank you so much for being with me. I hope I gave justice to the time you allowed me to talk with you guys. Thank you so much, Rotrack President Sachin, for inviting me here, and a wonderful job by MOC Vrunda and Ankita. Thank you so much. Thank you, DCI. Thank you, DCI, Rotarian Virendra Patrikar, sir. Now, I would like to call DRRN Sanail Ahmed to introduce our third speaker, DGN Rotarian Dr. Anand. Hello, Was I audible? I mean, there was some issue here. Hello. Am I audible? Thank you. Hello. Yes, sir. Yes. Very good afternoon, everyone. I am DRRN Rotractor Sanail Ahmed from our ID 3030. I am here to give a brief introduction about our DGN, Dr. Anand Jhunjhunwala, sir. Dr. Anand Jhunjhunwala is an ophthalmologist by profession since 1999. He graduated from prestigious Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur, completed post-graduation degree of MS Ophthalmology from Government Medical College, Nagpur. He also completed his DNB and fellowship from Sri Shankara Netralaya, Chennai. Born in October 1973, a second-generation Rotarian, life lessons of service above self originates from his grandparents Purushottamji and Sita Devi, who were freedom fighters. Father Ashokji Jhunjhunwala served Rotary for 24 years and was past president of Rotary Club of Khamgaon. Mother Ashaji was a charter president of Innerville Club Khamgaon. His wife Monica is a social activist and past president of Innerville Club of Khamgaon. He is blessed with a daughter, Khushi, who is currently pursuing her studies.
While serving the community as an ophthalmologist, Dr. Anand has also been serving the society at large and has held various positions with many prestigious body and organizations, some of them being Charter Secretary of Buldana Ophthalmology Surgeon Society, Executive Member of Vidarbha Ophthalmology Society, Charter Vice President of Bharat Vikas Parishad, Secretary of IMA Khamgaon, Medical Director Madhav Netra Pedhi, and member of governing body of Government Polytechnic Khamgaon. He is his Rotary journey begins in January 2003 as a member of Rotary Club of Khamgaon. He served as the president of Rotary Club of Khamgaon in 2010-11, post which he held various executive posts. He's also served as a district as assistant governor, Raila chair, membership, growth director, and district public chair. Dr. Anand has been facilitator at many Rotary and other training events. He has attended district and national training seminars, including Disha at Hyderabad and Kolkata. Dr. Anand is a major donor and a benefactor for the Rotary Foundation. Additional contributions were extended to the Rotary Foundation through his family, as all 9 members are PHF. He does not miss a chance to donate a blood and may have completed a century by himself. His other passions are bird watching, wildlife photography, and traveling different countries and cultures. In his spare time, he enjoys playing badminton, watching cricket, reading, and listening to music. So, simply, warm, amiable are the words to describe DGN Anand Jhunjhunwala sir. Now I request DGN Rotarian Anand Jhunjhunwala sir to kindly grace the session with his words. Thank you, Sanil. Thank you so much. Can I continue? Yes, thank you. सबसे पहले रोटाए हुनर, ऋतुए हुनर, जब मैंने नाम पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कुछ मुझे संगीत गाना होगा, एक आधा गाना गाना होगा, कुछ पोएट्री सुनानी होगी। पर दोस्तों जब मैंने एजेंडा को देखा, हे गाइस थोड़ा स्माइल लाओ यार चेहरों पे, क्या लगा है? तब से मैं देख रहा हूँ चल रहे हैं। प्लीज, दैट्स ग्रेट, ग्रेट 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 कृष्णा, ग्रेट, नाइस। दोस्तों रोटाए हुनर, दिस इज अ कंटिन्यूड रोट्रैक्ट एजुकेशन, यू नो, कंटिन्यूड रोट्रैक्ट एजुकेशन। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में यदि आपको काम करना है तो उस चीज की जानकारी होना जरूरी है। यदि हमको उस चीज की जानकारी है तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट से कर सकेंगे और ज्यादा मजा उस चीज का उठा पाएंगे। आप मानते हैं इस बात को? Very good. You can use your chat box, okay? I don't want you to unmute yourself, but I love if you use your chat box and keep responding me, right? मेरे इंट्रोडक्शन में सैनिल ने कहा, थैंक यू सैनिल, बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन आपने मेरा किया, सबसे मेरा परिचय कराया, बहुत बहुत थैंक यू। 2 करेक्शंस है वहां पे which I am categorically going to mention. One, my father has done 42 years of Rotary service. Yes, said 24, वो नंबर उल्टा कर दिया था। I am very proud of that, that's why I am telling you. Nothing wrong, nothing against you, Sanil. Second important, I have not started my career in Rotary as a Rotractor. ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है और ये मन में जो खंत है ये जिंदगी भर मेरे रहने वाली है। दोस्तों मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था उसका नाम सैनिल ने बताया, वो था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। राइट नाउ वी हैव रोटरी क्लब देयर, पर अफसोस मैं जब वहां था 1990 में, तब वहां पे कोई रोटरी क्लब नहीं था। नो, वेरी बैड फॉर मी, राइट? तो ये मन में जो है ना एक छोटी सी कमी हमेशा खलेंगी कि रोटरी मेंबर में कभी नहीं था, पर उस कमी को मैं दूर करूंगा आप लोगों के साथ बार बार जुड़कर, राइट? DRR अभिषेक, राइट, आपने सही कहा, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटरी मूवमेंट एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ। दोस्तों होस्ट क्लब रोटरी क्लब ऑफ खामगांव, प्रेसिडेंट सचिन से ऑनररी सेक्रेटरी अजिंक्य, प्रोजेक्ट चेयरमैन वृंदा, वेरी वेल वृंदा, बहुत सुंदर आप एमओसी कर रही है और आपको जो साथ दे रही है, आई जस्ट फॉरगॉट, आई थिंक अंकिता, शी इज आल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। मेरे पहले जो 2 लोगों ने आपके साथ बात की वो थे IPDRR शांतनु और IPDRCC। ये क्या आया? IPDRCC
वीरेंद्र जी के बारे में ये बताया नहीं गया था शायद, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ही इज ऑल्सो रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट चेयर थे लास्ट ईयर, और वीरेंद्र जी ने, आप दोनों को उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों सचमुच उस इंफॉर्मेशन के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा रोटरैक्ट का जो एक्सपीरियंस है हम उसको बहुत खुशनुमा बना सकते हैं, राइट। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, प्लीज, मैंने ऑलरेडी कहा, यू यूज, प्लीज कीप यूजिंग योर चैट बॉक्स। आई लव पीपल यूजिंग, आई लव माई डियर्स। देखो मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था आई एम अ फैसिलिटेटर, राइट। आई नेवर लाइक टू स्पीक, यू नो, स्पीकर बोल के काम करना, स्पीकर बोल के मुझे किसी फोरम में जाकर कुछ पट्टी पढ़ाना सच में मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके बीच आया हूं तो आपसे कुछ सीखने आया हूं, और मैं तब तक नहीं सीखूंगा जब तक आप आपका इनपुट मुझे नहीं दोगे। तो आई लव इफ यू कीप पोस्टिंग, कीप यूजिंग योर चैट बॉक्स। अनदर थिंग, कई लोगों के वीडियोस बंद है दोस्तों, मैं जो देख रहा हूँ वो ग्रिड देख रहा हूँ, और देयर आर ऑलमोस्ट 6 ग्रिड्स जो मैं शफल करता रहूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप आई कांटेक्ट बना के बात करना। तो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, इफ इट इज नॉट वेरी एसेंशियल कि आप उसको बंद रखें। हमने जो करंट डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट चेयर थे उनसे हमने बात की थी, अनफॉर्चुनेटली हम उनको इस फोरम पे नहीं ला पाए। उनको इस बात पे जोर देना था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डे, क्या पर्पस है। मैंने तो मेरा पर्पस बता दिया, आपसे कनेक्ट करना, आपसे कुछ सीख के जाना। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस इस पर्टिकुलर जो सेशन है डिस्कशन का, वो जो सेशन है हाउ वी कैन यूज रोटरैक्ट, और हाउ रोटरैक्ट इज इम्पैक्टिंग, और हाउ रोटरैक्ट कैन इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल लाइफ, हमारे पर्सनल एक्टिविटीज, हमारा पर्सनालिटी को किस प्रकार वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोस्तों एंड ऑफ द सेशन मैं 2 बातों आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। एक कि, या उन बातों पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, एक कि रोटरैक्ट किस प्रकार किन किन चीजों में हमारे लाइफ में उपयोगी साबित होता है, और दूसरा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार आप उन चीजों को आत्मसात करके रोटरैक्ट एक्टिविटी को अपने आप को सुधारने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो बहुत ख्याल से इस सेशन में पार्टिसिपेट करिएगा। सबसे पहले 134 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, आप सभी को इंक्लूडिंग मी, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ट्रेनिंग इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी संडे आफ्टरनून पोस्ट लंच। ओह माय गॉड, वेरी गुड। आई रियली कांग्रेचुलेट यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड वेरी मच थैंकफुल कि मुझे आपने आपके साथ बुलाया और बात करने का मौका दिया। एक छोटा सा क्विज, कुछ सवाल मैं आपको पूछता हूं, आप उसके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। What is the status of International Youth Exchange for this year? इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज का स्टेटस क्या है? Is it going to happen or not going to happen? Can you please post it? Rahul says no, it is suspended. Shantanu says it is suspended. Yes, cancelled for 2 years. I doubt 2 years. Vijay Sharma says no. Yes, everybody says no. तो आपको पता है कि IY का जो प्रोग्राम है कोविड को देखते हुए इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट में सस्पेंड किया है, और यदि पॉसिबल हुआ तो एंड ऑफ द ईयर, यानी फुल टर्म प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, आने वाले एंड ऑफ द ईयर में यदि पॉसिबल हुआ तो शॉर्ट टर्म एक्सचेंज करने की कोशिश की जाएंगी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, आप भूल जाइए रोटरैक्ट को थोड़ी देर के लिए, राइट? भूल जाइए रोटरैक्ट को, हम बात करेंगे अपनी आपकी मेरी, राइट? हम एज अ पर्सन जो कुछ आज है, आर वी द बेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सेल्फ? टेल मी, क्या हम बेहतर, यानी ये बेस्ट पॉसिबल फॉर्म है हमारा? आर वी द बेस्ट? नो, एवरीबॉडी सेज नो, राइट? वी आर नॉट द बेस्ट। वेरी गुड। नाउ इसका मतलब हम इस बात को एग्री करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इन आवर सेल्फ, राइट? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ व्हाट इज द इजीएस्ट अप्रोच? किस तरीके से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं? यदि हम मानते हैं कि हम बेस्ट नहीं है, तो हमारे पास आता है कि हम अपने आप को किस तरीके से शॉर्टेस्ट, एकदम इजीएस्ट वे में किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा ये सवाल आता है जिसपे आपको आंसर करना है कि what are the aspects of our life, what are the aspects of our personality जिसपे हमको काम करने की जरूरत है। दोस्तों, I am looking at your chat box.
किन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ पे हमको लर्निंग, राहुल सेज, उज्जवल सेज लर्न डेली, वेरी गुड, involvement, continuous learning, public relation, very good, habits, good learner as a student, covering weakness, अपनी weaknesses को identify करके उस पे काम करना, habits को सुधारना, very good. और बताइए, there are so many, reading, right, very good, reading से related बहुत चीजें याद आती है मुझे तो, learning new things, right, there are so many new things which we should learn. ये छोटे-छोटे चीजें, you know, with full strength we should work, very good. संस्कृति कहती है फॉरगेट द पास्ट, कीप लर्निंग, जो कुछ अब तक हुआ, जो कुछ हम पहुंचे हैं उसको भूल जाइए. यू नो व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? संस्कृति के इस बात पे मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे आपको बात बताता हूं. व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग की दो बातें हो सकती है. क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है? मैं ये सोच लूं कि हाँ मैं तो बहुत बढ़िया करने वाला हूं, मुझे कुछ चिंता करने की बात नहीं है. इज दैट अ पॉजिटिव थिंकिंग? नो, राइट? संस्कृति says no, that is very true, that is not positive thinking. Yes. दूसरी बात, यदि मैं ये सोच लूं कि हाँ यस मैं तो बढ़िया रोड ट्रैक में पूरा इन्वॉल्व हो ही जाऊंगा और अच्छे से अच्छा काम कर ही लूंगा और मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं. इज दैट अ पॉजिटिव थिंकिंग? प्रोबेबली अगेन नो. देन व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग इज जब हम कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जो हमें करना चाहिए और उसके रिजल्ट के बारे में हम नहीं सोचते. यदि हम फेल्यूर या सक्सेस के बारे में न सोचते हुए हमको जो कार्य करना है उस कार्य के बारे में सोच के हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग. यस, दैट इज वन ऑफ द थिंग which one should incorporate in ourselves, in our personality to be a better person, right? Go ahead. Full energetic. कौन है भैया ये मेरी तारीफ कर रहा है? तारीफ आखिरी में करिएगा प्लीज, राइट? 100% talking quick, taking quick action, you know, taking action is very important. बहुत बातें सुन लेते हैं हम, ऐसे बहुत सारे सेशंस अटेंड कर लेते हैं, घर जाके ना फिर से वो की वही टीवी शुरू हो गया तो कुछ सुधरता नहीं है हमको. यदि ऐसा स्टडी बताता है, मैं नहीं बताता हूं, ऐसा स्टडी बताता है कि 80% ऑफ द पीपल who learns the things from such things or anywhere in the world, they don't implement. तो मैं चाहता हूं यहां उपस्थित 130 के 130 लोग उन 80% में ना आए जो कि चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते, बल्कि उन लोगों में आए जो, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी सब बातें आप इंप्लीमेंट करिए, बिल्कुल नहीं, हर एक को सब बातें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं तो मराठी में कहते हैं ना, एक ना धड़ भारावर चिंध्या, वैसा हो जाएगा, एक भी काम ढंग से नहीं होगा. तो आपको कुछ बातें जो आप समझते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन बातों को आत्मसात करके उन पे स्टडी करके उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत अनिवार्य है दोस्तों. तो और कुछ बातें कर सकते हैं हम. और कौन सी पर्सनालिटी की बात थी भैया? कंसिस्टेंसी. या वेरी गुड, समबडी सेड, शौनक सेड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सक्सेस पता है उन बातों से नहीं मिलता जो हम कभी कभार करते हैं. सक्सेस उन बातों से मिलता है जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं. मेरे प्रोफाइल में बर्ड वॉचिंग मेरी हॉबी दी गई थी. वो 1 या 2 दिन बर्ड वॉचिंग करके नहीं मेरी हिम्मत हुई उसको मेरे हॉबी में लिखने की. वो मुझे कंटिन्यूअस, मैं पिछले 8 सालों से बर्ड वॉचिंग कर रहा हूं और ऑलमोस्ट अल्टरनेट संडे करता हूं, करके मैं वो उस चीज को, उस चीज से मुझे कुछ फायदा हुआ ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ, राइट? सॉर्ट एनालिसिस, दैट इज वेरी गुड. टीम वर्क पे हमको काम करना चाहिए, राइट? इस वर्ष की हमारी थीम है, क्या है रोट्रैक की थीम? जो डिस्ट्रिक्ट की थीम है टीम वर्क से रिलेटेड है, कम ऑन. ग्रोइंग टुगेदर, राइट? ग्रोइंग टुगेदर इज आवर थीम. तो ग्रोइंग टुगेदर का मतलब ही यह है कि हमको टीम में काम करना है. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच हैज टू बी वर्कड अपॉन फॉर बीइंग अ गुड पर्सन. टीम वर्क में इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है? व्हाई वी आर देयर टुगेदर एंड वर्किंग एज अ टीम. भाई अकेले भी तो काम कर सकते हैं. सैनिल अपने घर में, अपने एरिया में अच्छे अकेले से काम कर सकता है. संस्कृति अपने घर में जाके काम कर सकती है. यश अपने साकेत अपने घर में जाके अच्छे से काम कर सकता है, अपने एरिया में काम कर सकता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इंडिविजुअली एंड वर्किंग इन अ रोड ट्रैक एज अ टीम? रोड ट्रैक में जब हम काम करते हैं तो हमसे अपेक्षा होती है 1 + 1 शुड नॉट बी 2 बट 1 + 1 शुड बी 11. ये अपेक्षा होती है. यानी हम काम का जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो हम सबके काम के सम जितना ना हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए. ये टीम वर्क की एक खासियत है.
दोस्तों एक और चीज, यदि हम टीम के साथ काम करते हैं ना, तो टीम के साथ काम करने का एक फायदा यह है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सपोज वीरेंद्र जी, मैं, राजू नथानी साथ में हम काम कर रहे हैं, और सपोज फॉर पर्टिकुलर रीजन एक हफ्ता मैं बिजी हूँ, राइट? सो आई एम श्योर वीरेंद्र जी एंड राजू विल टेक ओवर एंड विल डू द वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, राइट? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको जब हम टीम में काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंसान बिजी है तो वो रुक जाएगा, बाकी लोग मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और क्या होता है टीम में काम करने का फायदा? टीम में काम करने का फायदा ये होता है कि ज्यादा दिमाग काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन हमको मिलेगा, राइट? तो ये काम होता है, जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट हम क्रिएट कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा इनोवेटिव आइडियाज, राइट? सचिन ने कहा इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज वहां पर आएगी। दोस्तों जो कुछ चेंजेस हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं उसकी कुछ स्टेजेस होती है, वो स्टेजेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक स्टेज होती है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होते हैं ना, हमारे लाइफ में हो या समाज में हो या कहीं भी दुनिया में हो, उन प्रॉब्लम्स को हमारा जो देखने का नजरिया है वो कुछ स्टेजेस का होता है। एक होता है हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, राइट? दूसरा नजरिया होता है हम उससे अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, राइट? तीसरा स्टेप आता है हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और चौथा समय आता है, एक ऐसा समय आता है हम उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और पांचवा समय ऐसा आता है दोस्तों कि उस एक्शन को हमको बरकरार रहना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, उस हमारे हैबिट को मेंटेन रखना होगा। तो ये चेंजेस यदि हम लाइफ में इस स्टेजेस में यदि हम है, जो कुछ स्टेज में आप हो उस स्टेज से ऊपर उठना चाहते हो, तभी आप आपके पर्सनालिटी को इंप्रूव करोगे। दोस्तों वर्किंग ऑन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू वर्क अपॉन एंड आपको आपकी पर्सनालिटी, आपको आपके इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल इंप्रूव करना है, तो आपको आप पे खुद पे काम करना जरूरी है। खुद पे काम कर रहे हैं क्या भाई? बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए, आपके खाने पीने में बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस चीजें होनी चाहिए, आपके कनेक्शंस दूसरों से बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, आपने फिजिक्स पे जोर देना चाहिए, आपने आपके मेंटल हेल्थ पे जोर देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद के लिए समय निकाल के उस पे काम करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, इनके बारे में यदि हम बात करते हैं, काम करते हैं, तो हम हमारे बारे में सोचते हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? अब इन सब चीजों को जिनके बारे में हमने अभी बात की पर्सनालिटी से रिलेटेड, उनको मैं समअप करना चाहूं तो देयर आर थ्री लेयर्स, प्लीज सुनिएगा। देयर आर थ्री लेयर्स। वन इज द लेयर, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स है जो इंसान में होनी चाहिए? हमने बहुत सारी स्किल्स की बात की, उसमें से कई बातें हैं जो स्किल्स में आती है, राइट? फिर देयर इज सेकंड थिंग which is our behavior. Skills के एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने कई दिए हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, डिसीजन मेकिंग, ऑनलाइन सर्च, और एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो, जिसपे आप काम करके आपके स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। और आपको पता है यदि एक स्किल आप इंप्रूव करते हैं तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि आपको और कई चीजों पे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। सेकंड लेयर इज लेयर ऑफ बिहेवियर्स। हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं, ये हमारे पर्सनैलिटी की सेकंड लेयर होती है दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिंग कंपैशन, किसी के बीइंग स्टेबल, यदि कोई खराब सिचुएशन आती है तो उसमें स्टेबल रहना। बीइंग कंसिस्टेंट, ये हमारे बिहेवियर का पार्ट है। बीइंग ओपन टू फीडबैक्स, यू नो, किसी ने मेरी तारीफ की तो ठीक है, किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, कुछ बातें ऐसी बताई कि भाई यहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आई शुड बी ओपन टू द फीडबैक्स, फिर ही मैं इंप्रूव हो सकता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। अडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ बिहेवियर के पार्ट्स है, बिहेवियर के प्रकार है जो हमको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू कम आउट फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये इन चीजों का रहना हमारे पर्सनालिटी में बहुत जरूरी है। और थर्ड इनर मोस्ट लेयर इज द एटीट्यूड एंड द बिलीफ। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा विश्वास है हमारा, और एटीट्यूड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। होप is very important part of it. Wants to go above and above, you know, go develop above and above. Believe that all people are fundamentally good. आप यदि ये सोच के काम करोगे कि यार वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसे ही है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यू शुड हैव बिलीफ सिस्टम कि हाँ सब लोग फंडामेंटली अच्छे होते हैं। You should believe that I can handle whatever life throws at me.
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ ने मेरे पे डाला है और मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ। यदि आप इस बिलीव सिस्टम के साथ काम करते हो तो निश्चित आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो ये तीनों लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों हमारी पर्सनैलिटी। अब चलो बहुत हो गया पर्सनैलिटी के बारे में, फिर से हम रोड ट्रैक पे आते हैं। नाउ हाउ रोड ट्रैक डज whatever things they do for improving our personality, right? या रोड ट्रैक ऐसी कौन सी चीजें हमको देता है? I am seeing the chat box, you know, what road track does for me, क्या क्या करता है रोड ट्रैक मेरे लिए। अब इस बात को जो हमने पहले 10 मिनट बात की कि पर्सनालिटी के लिए जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट से बात करिए कि रोड ट्रैक इन कंपोनेंट्स में कैसे फर्क ला सकता है। नेटवर्किंग, यस, these are the things, leadership development, networking, building relationship with the people, these are few things which road track offers to us, you know. Very good. Professional development is another thing, very good important thing. Professional development is very important. How working in our organization road track, how that helps in professional development. So there are many things, many aspects कि भाई नेटवर्किंग होता है जो हमको प्रोफेशनली काम आता है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम यहाँ सीखते हैं डिस्कशन के द्वारा वो हम हमारे प्रोफेशन में या फैमिली लाइफ में अप्लाई नहीं करते, कर सकते हैं ना। तो जो हम यहाँ सीखते हैं वो वहां भी अप्लाई करते हैं और वहां भी हमको यूजफुल होता है। टीम बिल्डिंग, राइट, टीम कैसे बिल्ड करना, हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक स्पीकिंग। मैनेजमेंट स्किल, यस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज। हमने ये जो प्रोग्राम आज सचिन ने ऑर्गेनाइज किया था, इसने शुरू किया था क्लब लेवल से, क्लब लेवल में ऑर्गेनाइज करेंगे, शायद हमको 30 की अटेंडेंस रहती थी और आज यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम गए तो सचिन को 130 मेंबर्स की अटेंडेंस मिली। सो दैट इज हाउ यू नो योर मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव्स। फेलोशिप, मेंबरशिप, नेटवर्किंग, दीज आर सो मेनी थिंग्स, यू नो। इसके अलावा कोई कुछ बताएंगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट व्हिच हैपेंस, यू नो, ऑल राउंड डेवलपमेंट व्हिच हैपेंस इन रोड ट्रैक। These are the things, you know. Road tracks provides you opportunities, right? चलो मैं थोड़ा sum up करता हूँ। Road track provides you opportunities, then it provides you experience, then it provides you confidence to do the things, right? And then it provides you lifelong friendship opportunities, right? और दोस्तों यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलता है और वो आप घर में ना करते हुए, आपके प्रोफेशन में ना करते हुए और कहीं करो तो अच्छा नहीं होगा भाई, रिस्क वित्ती अपनी नहीं रहेगी ना। तो रोड ट्रैक आपको वही तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आइए आप आपके इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करिए, आप लोगों को जोड़िए और जो कुछ एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ करना है करिए। और आपको बताऊं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है आउटकम को लेके, आउटकम को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। हो सकता था आज 130 के जगह यदि 50 मेंबर ज्वाइन करते थे, क्या होता था? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? किसी ने ये नहीं बोला होता कि 130 ही होना थे करके, राइट? हमने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था रोटरी क्लब ऑफ खामगांव ने ऑनलाइन करियर गाइडेंस का, 1400 रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके लिए। दैट वाज यूट्यूब का सेमिनार था एंड 1400 रजिस्ट्रेशंस वी गॉट। And you know, there were 750 participants which were there actually online during that period. तो ये चीज है जो आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप। जैसा किसी को वोट ऑफ थैंक्स कहने को बोला है तो आप यहाँ आके दीजिए, यू नो। किसी को राइटिंग स्किल डेवलप करनी है तो आप आपकी प्रेस नोट लिखिए, आप आपकी समरी लिखिए, यू नो। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच रोड ट्रैक प्रोवाइड्स यू platform to do whatever experiment you want to do, of course with the consultation of your club. उसके बाद joy, you know, एक खुशी मिलती है हमको, एक joy of meeting people, right? Joy of doing service, ऐसी खुशियां मिलती है आपको। रोड ट्रैक में बताइए कहाँ कहाँ खुशी मिलती है आपको? दो चीजें तो मैंने आपको बताई, खुशी आपको कहाँ मिलती है रोड ट्रैक में? फ्रेंडशिप, फन, राइट? फन भी होता है ना, एंटरटेनमेंट होता है, मजा आती है, दैट इज द प्लेस, right? One more thing, with increasing position in road track and rotary, nothing increases except the responsibility, right? तो आप यदि चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर की पोजीशंस आप ऑप्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करिए, so that you can have opportunity to work with more responsibility। दोस्तों it is very important कि
रोटरैक्ट जो हमको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी, वो कई लोगों के साथ करता है। हमारे फेलो रोट्रैक्टर्स होते हैं, इंटरैक्टर्स होते हैं, रोटेरियंस होते हैं, हमको कम्युनिटी से जोड़ने का काम करता है, कम्युनिटी लीडर्स से हम मिलते हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से भी, राइट। सो रोटरैक्ट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके वजह से हम हमारे देश तक सीमित नहीं रहते, हम हमारा दोस्ती का दायरा हमारे क्लब, हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे देश से भी ऊपर बढ़ा के काम कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, ट्राई सम टाइम। किसी रोटरैक्ट मेंबर को किसी भी कारणवश फोन करके देखिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके क्लब में नहीं है, कहीं और है, उसको कॉल करके देखिएगा कितना सुंदर तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। इफ यू आर नॉट डन इट, प्लीज डू इट एंड सी how your life changes. Organizational skill, leadership skill, time management is very important, right? एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, हम पोजीशन तो ले लेते हैं, पोजीशन लाइक सेक्रेटरी वाली या ट्रेजरर वाली या प्रोजेक्ट चेयरमैन वाली, पर होता क्या है, हमारे मन में डर होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने ट्रेजरर की पोजीशन ली, मैं क्या करूंगा कि जो कुछ अकाउंटिंग का काम है मैं ऐसे बंदे से कराऊंगा जो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है। तो इससे तुम थोड़ी सीखने वाले हो मेरे भाई। यदि आपको सीखना है तो आपने जो पोजीशन ली है उस पोजीशन पे ठीक तरीके से, पूरे तरीके से इन्वॉल्व होके काम करिए, तभी तो जाके आप उस पोजीशन को जस्टिफाई करोगे और खुद को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आगे कुछ ना कुछ सीखोगे आप, राइट। 3 चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है रोटरैक्ट के बारे में, एक वो है लव, दूसरा एंथुसियाज्म और तीसरा हैप्पीनेस। दोस्तों लव, प्यार वो चीज है जो दुनिया को गाइड करता है आगे बढ़ने में। एंथुसियाज्म वो चीज है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है, और हैप्पीनेस वो चीज है जो हमको निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों चीजों को आपके रोटरैक्ट में ढूंढिए, उसको नर्चर करिए और उसका मजा लीजिए। दोस्तों एक और चीज जो रोटरैक्ट में होती है वो है मेंटरिंग। मेंटरिंग इज डिफरेंट देन टीचिंग, और शांतनु जो करता है प्रोफेसर वगैरह वाला, वो चीज थोड़ी अलग है। मेंटरिंग में क्या होता है, एक मेंटर होता है और मेंटी होते हैं, तो यू कैन बी एनीथिंग, राइट। आपको ऐसा लगता है किसी बंदे से कुछ सीखना है तो बिकम हिज मेंटी, उसका मेंटी हो जाओ। और आपको ऐसा लगता है कुछ लोगों को आप सिखा सकते हो, कुछ बातें आप किसी को बता सकते हो, तो उनके मेंटर हो जाओ। तो दोनों भी व्यक्ति, मेंटर और मेंटी, दोनों भी जो होता है, मेंटरिंग के जो प्रोसेस होती है उसमें लर्निंग प्रोसेस होता है वो उनके लिए, राइट। सो मेंटरिंग इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी व्हिच रोटरैक्ट प्रोवाइड्स फॉर ऑल ऑफ अस। और रोटरैक्ट ट्रैवल इज अनदर अपॉर्चुनिटी व्हिच रोटरैक्ट प्रोवाइड्स टू अस। दोस्तों रोटरैक्ट जो कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, जितना हम घूमेंगे, जितना नए नए लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस को जानने का मौका हमको मिलेगा, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार सिर्फ एक दायरे में सोचते रहते हैं, जब तक हम ज्यादा लोगों को मिलते नहीं है तब तक हमको एक ब्रॉड व्यू पता नहीं चलता है, और जब हमको ब्रॉड व्यू पता चलता है हम डिसीजन लेने में ज्यादा अच्छे सक्षम हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितना ज्यादा ट्रैवल आप करोगे, उतना आपके लिए वो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। रोटरैक्ट प्रोवाइड्स यू दैट experience, that opportunity to learn, opportunity to travel, right? So there are so many skills दोस्तों अपने लाइफ में, right? There are some skills जिसमें हम पर्टिकुलर इंसान बहुत माहिर होते हैं, और there are some skills जिसपे हमको वर्क करना होता है। तो जो स्किल्स में हम माहिर है उसका हमने रोटरैक्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका इस्तेमाल करके हमने हमारे फेलो रोटरैक्टर्स को और कम्युनिटी को उसका फायदा पहुंचाना चाहिए, right? Do you agree with this? Right. और secondly, it is very important कि जो skills हम में कम है, ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग भाई मेरे को थोड़ा डर लगता है, या राइटिंग में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, या सर्चिंग में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, तो रोटरैक्ट में उन चीजों में इन्वॉल्व होकर आपको अपनी उन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ इज लर्न, सुनिएगा, learn, relearn and unlearn, right? Learning is important, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, right? Everybody will agree with me कि learning is important. Why relearning is important? Can you tell me why relearning is important दोस्तों?
रीलर्निंग इज वाई इंपॉर्टेंट. आई एम लुकिंग एट अ चैट बॉक्स. रिवाइज करने के लिए, राइट? वेरी गुड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज करते जाते हैं ना, तो हम उसमें शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं और जो एक्चुअली इसेंस ऑफ चीज है वो कहीं दूर रह जाती है. तो रीलर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड self correction, right? Very good. Better manager, very good. Keep yourself updating yourself is also very important, right दोस्तों? And one more thing, कई लोगों ने वीडियोस बंद किए हैं. मैं फिर एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप आपके वीडियोस कृपा करके ऑन कर लीजिए. धन्यवाद. राइट. तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट इज अनलर्निंग. आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल स्टोरी. एक बहुत पहले की कथा है, गुरुकुल के जमाने की कथा है. गुरुकुल हुआ करता था, उसमें एक क्लास भरा करती थी, गुरुजी आया करते थे, क्लास लिया करते थे. जब वो क्लास चला करती थी ना, तो बीच में क्या हुआ करता था, एक बिल्ली बीच बीच में से घुमा करती थी. तो बिल्ली बड़ा डिस्टर्ब करती थी सब पूरे क्लास को, तो वो क्लास डिस्टर्ब हो जाता था. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया एक दिन कि भाई चलो इस बिल्ली को अपन बांध देते हैं. रोज सुबह आकर इस बिल्ली को इस पोस्ट पे, इस खंबे पे बांध दिया करेंगे. तो उन्होंने शुरू कर देते हैं. वो बिल्ली को रोज सुबह बच्चे आते हैं, वो विद्यार्थी आते हैं, वो बिल्ली को पकड़ते हैं और टाई कर देते हैं, वो खंबे को बांध के रख देते हैं. फिर ऑफ कोर्स उसके वजह से क्या होता था कि डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता था. तो ये प्रैक्टिस उन्होंने चालू रखी. कई सालों तक ये प्रैक्टिस चलती रही. एक समय आया जब गुरुजी का देहांत हो गया. वहां पे उस गुरुकुल में दूसरे गुरुजी आ गए. फिर से वो प्रैक्टिस चलती रही क्योंकि वो फ्रूटफुल थी, इंपॉर्टेंट थी. वो प्रैक्टिस चलती रही. एक समय ऐसा आया जब वो बिल्ली पे गुजर गई, बिल्ली का डेथ हो गई. राइट. अब बच्चों ने क्या क्या बताया आपको. दूसरे दिन गए, बाजार में गए, एक बिल्ली खरीद के लाई और फिर से उन्होंने बांधना शुरू कर दिया. अरे दोस्तों, आप सोचिए, आप पर्पस क्या था. वो जो रिचुअल वो कर रहे थे, उसका वो चीज जो कर रहे थे, उसका पर्पस ही खत्म हो गया ना. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बिल्लीज इन आवर लाइफ, जिसको हम बांधते रहते हैं, उस खंबे को बांधते रहते हैं. कभी ये नहीं सोचते कि उस बिल्ली को बांधने का कुछ उपयोग हमारे जीवन में है भी या नहीं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कोई चीज आपके जीवन में है, ऐसी कोई बिल्ली आप रोज उस खंबे को बांधते हो, तो कृपया उस बिल्ली को बांधना बंद करिए और कुछ नया एनिमल ढूंढिए जिसको आपको उस खंबे को बांधना होगा. दोस्तों प्लीज स्माइल यार, थोड़ा सा हंस लिया करो प्लीज. बहुत सीरियसली आप सुन रहे हो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ में. राइट. थैंक यू. थम्स अप. एक और स्टोरी थी बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. एक और आह्वान मैं आपको करना चाहता हूँ, एक अपील आपको करना चाहता हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे हम ये अपेक्षा करें कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते रहे. आपके ऊपर के जनरेशन के मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं. तो हमारे लिए वो जितना डिफिकल्ट है, जितना आप लोगों के लिए वो इजी है अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना. राइट. तो आपको ये अपील है कि कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ टेक्नोलॉजिकली, एट द सेम टाइम helping others to improve or to update themselves technologically. Right. ऐसी कई टेक्निक्स है, ऐसी कई चीजें हैं, कई एप्स है, एप्लीकेशंस है, कई लोगों को आप व्हाट्सएप सिखा सकते हो, फेसबुक सिखा सकते हो, नेट बैंकिंग सिखा सकते हो. ऐसी कई चीजें हैं जो आप आपके जीवन में कर सकते हो दोस्तों. और कई बार क्या होता है पता है आपको कि हम ये सोचते हैं कि भाई एक छोटा सा काम करने से क्या फर्क पड़ने वाला है किसी को. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन छोटे छोटे कामों को करते हुए ये हर एक छोटी छोटी लाइफ को आप टच करते रहो, छोटे छोटे काम करते रहो. उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उन लोगों के जीवन में जिनको आप टच कर रहे हो, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, बल्कि आपके भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. तो ये मेरी अपील है कि टेक्नोलॉजी वाइज आप अपने आप को तो अपग्रेड रखते ही हो, वो आप प्लीज रखिए, और जो नहीं रखते हैं उन्होंने रखना सीखिए. और साथ में आप आपके जो आजू बाजू का समाज है उसको भी आप अपग्रेड करते रहिएगा. राइट. हमारे कोर वैल्यूज है फेलोशिप, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, सर्विस और लीडरशिप. ये हम पजेस करते हैं दोस्तों. पजेस तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. राइट. दैट इज इंपॉर्टेंट. हम उन चीजों को प्रैक्टिस करें. फेलोशिप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रोट्रैक में मिलती है भैया फेलोशिप की, पर हमको प्रैक्टिस करते हैं क्या, वो हमको देखना होगा. इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, सर्विस की कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लीडरशिप की कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है. इन सब को हमको प्रैक्टिस करना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन possessing those qualities. राइट. possessing those values in our life. possess करने से कुछ नहीं होने वाला. मैं ये कहूँ हाँ मैं बहुत इंटीग्रिटी वाला इंसान हूँ, अरे क्या होगा मेरे भाई, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या फायदा.
राइट। मैं बहुत फेलोशिप बढ़ाता हूँ, अरे प्रैक्टिस करो ना उन चीजों को, राइट। एक और चीज जो शांतनु ने शायद बताना भूल गया, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है शांतनु, और 7वां फोकस एरिया जो रोटरी इंटरनेशनल का है, सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट, उसको सूट कर रहा है आपका बैकग्राउंड, राइट। सो आई एम श्योर कि दिस ईयर द रोट्रैक्ट इज गोइंग टू सपोर्ट एनवायरनमेंट इन मेनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, ड्यूअल मेंबरशिप आप ले सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आप रोट्रैक के मेंबर तो हो ही, साथ में आप रोटरी के भी मेंबर हो सकते हो, आप रोटरी क्लब भी फॉर्म कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा की पूरा रोट्रैक क्लब रोटरी में कन्वर्ट हो जाए, वो अपने आप को रोट्रैक क्लब बोल के इंस्टॉल कर ले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। एंड इट हैज हैपेंड मेनी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इसका फायदा क्या है ड्यूअल मेंबरशिप का? आप ज्यादा बड़े काम कर सकते हो, रोटरियंस के साथ जुड़ सकते हो, जो मैं समझता हूं कि आपसे उम्र में बड़े हुए हैं, तो बड़े हैं तो उनके पास फाइनेंशियल चीजें भी ज्यादा होगी, उनके आप ज्यादा बड़े सर्विसेज कर सकोगे, और इम्पोर्टेंट चीज उनको आप मेंटर बना सकते हो। आपको जब भी ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर रोटेरियन आप के साथ, उसके साथ आप काम करके आपको फायदा हो सकता है, तो आप उसको मेंटर बना लीजिए। तो इन सब चीजों का फायदा आपको ड्यूअल मेंबरशिप में होगा। दोस्तों, सर्विस, अंत में मैं बात करूंगा सर्विस की। सर्विस, why working in the society, doing service in the society is important? Tell me what we get out of doing service in the society. मैं chat box की तरफ देख रहा हूँ। What I am going to get by serving in the society? मैं कुछ काम करता हूँ समाज में जाके। Only you can also type, okay? Vinith, you can also type. There is no problem, right? निशी इज ऑल्सो देयर, वृंदा इज ऑल्सो देयर। भूल जाइए, ऑर्गेनाइजर्स भी भूल जाइए, यू नो, मेरे बात मैं जब बात खत्म करूंगा ना, तो आपका काम सिर्फ 3 या 4 मिनट का बचने वाला है, तो आपका प्रोग्राम तो सक्सेसफुल हुआ ही है समझो। तो फॉरगेट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। स्माइल, हेल्पिंग अदर्स गिव सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सो मेनी थिंग्स, यू नो, यू गेट आउट ऑफ सर्विंग द पीपल। और क्या मिलता है? satisfaction, satisfaction. So many people are saying satisfaction, service to self, you know, service above self is our motto that we achieve. Blessings, right? आशीर्वाद मिलता है बड़ों का, जिन लोगों के लिए आप काम करते हो उनका आशीर्वाद मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वेरी गुड। सोसाइटी विल गेट बेटर एंड बेटर, राइट? विल, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे आसपास की सोसाइटी बेटर होती है तो उसका फायदा अंत में हमको भी मिलता है दोस्तों। इंप्रूविंग द वर्ल्ड, वेरी गुड। एक और चीज, डूइंग सर्विस इज वन वे ऑफ थैंकिंग, यू नो, एक थैंक करने का तरीका भी हो सकता है। सो दीज आर ऑलमोस्ट, यू आर कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स कि हमको सर्विस करने से क्या मिलता है। तो यदि हम सर्विस नहीं करते हैं या कम इन्वॉल्व होते हैं, तो दोस्तों याद रखिए आपको सर्विस में इन्वॉल्व होना ही होगा। फिर एक बार मैं बात करूंगा, शांतनु ने इस बारे में ऑलरेडी बात की है कि रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज। ये इस वर्ष की रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो है हॉल्गर नैक, उन्होंने जो थीम हमको दी है वो है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज। एक छोटी सी कार्टून देखते होंगे आप सब लोग, राइट? कार्टून में सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है आपका? 1-2 आंसर्स प्लीज, फास्ट, वी हैव वेरी लेस टाइम, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। अरे कोई तो टाइप करो यार। टॉम एंड जेरी, बेन 10, राइट? सो मोस्ट, सबने टॉम एंड जेरी तो देखा ही होगा। टॉम वो एक बड़ी बिल्ली है, जाड़ी मोटी, बहुत बुद्धि वाली, शादिर जिसको बोलते हैं वो बिल्ली है, राइट? और जेरी वो छोटा सा नाजुक सा चूहा है, राइट? और पूरे एपिसोड्स में एक ही चीज होती है, दोनों झगड़े करते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं, राइट? और अंत में जीतता कौन है? हर बार जीत उस जेरी की होती है, छोटा सा जेरी जीतता है। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये कभी आपने सोचा है? सोचा है कभी आपने कैसे वो छोटा सा जेरी हर बार जीतता है? राइट? मैं आपको एक सवाल पूछूंगा तो शायद आप जवाब दे दोगे। दोस्तों मुझे बताइए, टॉम किस चीज के लिए भागता रहता है? टॉम किस चीज के लिए भागता रहता है? ग्रीड, somebody said ग्रीड। ग्रीड किस चीज की? राइट? वो उसके खाने के लिए भागता रहता है, ग्रीड रहता है, वो हावरट होता है, खाने के लिए भागता रहता है, राइट? और जेरी किसके लिए भागता है? टेल मी व्हाई जेरी रन्स थ्रू आउट द एपिसोड? लाइफ, राइट? राइट, वेरी करेक्ट आंसर यू गॉट, राइट? तो टॉम जो भागता है वो खाने के लिए, फूड, अन्न के लिए भागता है, जेरी भागता है वो लाइफ है। दोस्तों जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है ना, जो रोट्रैक्ट आपको देता है, तो कुछ इस प्रकार भागिए जैसा जेरी भागता है लाइफ के लिए। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए और उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए और उसका पूरा उपयोग करिए और अपने रोट्रैक्ट एक्सपीरियंस को बहुत ही सुंदर और खुशनुमा बनाइए। दोस्तों
ये एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो सागर से क्या हासिल करना चाहता है, सागर से क्या हासिल करना चाहता है। हो सकता है वो गोताखोरी कर कर सुंदर सा हीरा हासिल कर ले, वो स्नॉर्कलिंग कर कर वो फिशेस का मजा ले ले, या किनारे पे खड़े होके अपने पैर गिल्ले कर ले और मजा ले ले, या कहीं दूर खड़े होके उन समुद्र की लहरों को निखारता रहे और आनंद ले ले। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप रोट्रैक में कितना इन्वॉल्व होना चाहते हो। ये कोई अभिषेक नहीं करने वाला, आपको पकड़ पकड़ के थोड़ी लाने वाला है रोट्रैक प्रोजेक्ट्स के लिए। ये आपको इन्वॉल्व होना है। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे आपको वो रोट्रैक का हीरा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, चंद मुझे बहुत अच्छी लगती है जो लाइनें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन लाइनों के साथ मैं अपने बात को यहां समाप्त करूंगा। तट पर बैठे बैठे कहां हाथ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे कहां हाथ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक तू जाएगा। राइट? कुछ न आया हाथ समझना। ऐसा हो सकता है दोस्तों हम एफर्ट्स करते रहे पर हमको वो चीज हासिल नहीं होती जो हम चाहते हैं। कुछ न आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। कुछ न आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे भी हो जितना मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। दोस्तों, इस पहले कदम की मैं आप सबके साथ उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर रोट्रैक मूवमेंट में इन्वॉल्व होकर ना सिर्फ समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान निभाओगे, अपने आप को भी आप बेहतर बनाओगे। फिर एक बार मैं आप सबको आपके बढ़िया रोट्रैक एक्सपीरियंस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Wonderful, wonderful, sir. Thank you. You were really full of energy and जिनको भी नींद आ रही होगी दोपहर में, पक्का आपने सबकी नींद उड़ा दी है। Yeah, you were like आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एडेप्टेबिलिटी, there were so many things that we surely need to improve and learn. 3 layers of belief, and most importantly what Rotrack gives us. I am the part of Rotrack since 8 years, and I agree with your point. It seriously, for the newbies who are all new in the Rotrack, I am very sure that with your journey with Rotrack in coming few years, you're going to learn many things that sir has mentioned, of course. And yes, the Shantanu sir, he also told us about what is the structure of Rotracks, how new changes are implemented. We have 2 different services, finance and foundation service. He told us about purposes, duties and responsibilities, and many other points. The Virendra sir has beautifully explained us about what is Hunar in our topic, Rotae Hunar. He focused on project planning. He told us how to improve them and what we can bring, how we can take a help of Rotary and other people to bring a new transformation in our society. Thank you, three of you. You seriously gave us a lot to take us home today. Thank you, Vrinda, for the conclusion. मैं 2 लाइन अपने रोट्रैक्टर्स के लिए पेश करना चाहूंगी। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। With this, now I call Rotractor Sanskruti Jalke from Rotrack Club of JIT Nagpur to give vote of thanks. Over to you, Sanskruti. Thank you, ma'am. On behalf of Rotrack Club of Khamgaon, I would like to extend my thanks to our District Governor, Rotarian Shabir Shakir sir, for your guidance and support. Thank you for such a wonderful session to our keynote speakers, IPDRR Shantanu Agarwal sir, DCI Rotarian Virendra Patrikar sir, DGN Rotarian Dr. Anand Junjunwala sir. Thank you so much to Rotrack District 3030 and District Secretary Rotarian Toby ma'am for giving us access to District Zoom ID. Assistant Governor Rotarian Rajiv Nathani sir, Rotrack Advisor Rotarian Anand Sharma sir, and Rotarian Prasad Agrawal sir for guiding and supporting us throughout the event. Thank you so much, sir. I would also like to thank DRR Abhishek Goyal sir and DRRE Lokesh Kansal sir for supporting and joining with us. I would like to extend my thanks to all collaborating clubs, Rotrack Club of Nagpur Vision,
Rotaract Club of Jhulelal Institute of Technology, Rotaract Club of Jalgaon West, Rotaract Club of Godavari, Rotaract Club of Nashik Metro, Rotaract Club of Loom City Malegaon, Rotaract Club of Bhasawal Tapi Valley, Rotaract Club of Srimati S.M. Agrawal Institute of Management, Chalisgaon. Thank you to all the viewers for joining us with us today. Your presence made this event a great success. Last but not the least, thank you to all the club members for your constant support and hard work throughout this event. Thank you once again to everyone. Thank you. Thank you, Sanskruti. So now, as we know, we are on the verge of end of this session. So as per our Rotaract Sanskruti, let's be ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone. I request host club president, Protector Satpura, at the session. Sachin, please unmute yourself. Meeting adjourned. Thank you everyone for joining. Sachin, please unmute yourself. Hello. Yes. Thank you everyone for joining the session. सभी को ओपन कर देना, ओपन कॉल. म्यूट ऑल. Yeah, I thank Prasad. He was wonderful host. Thank you so much, Prasad. Thank you, sir. Prasad, thank you so much. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Anand sir. That was a wonderful session. Thank you, Virendra. Thank you, Anand sir. आपका भी बहुत बढ़िया हुआ. Thank you, Patrika sir. Thank you, Shantanu bhai. आज मेरे सेशन आ गया, मजा आ गया. वंडरफुल जॉब. बहुत बढ़िया प्रसाद, राजीव भैया, सभी ने काफी अच्छा किया. भाई बढ़िया. Thank you so much, Virendra sir. Thank you so much. चलो बाय. लंच. बाय. चलो बाय बाय. Thank you so much, Anand भैया. बाय बाय. Bye sir. जी बहुत मजा आया. आनंद को बहुत बहुत बधाई. आनंद शर्मा. आनंद अल्टीमेट. आनंद शर्मा अल्टीमेट. यस, आनंद शर्मा अल्टीमेट. उसके नाम में आनंद है भैया. वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच. अरे अच्छा लगा मुझे. बहुत अच्छा लगा. वीरेंद्र वंडरफुल वंडरफुल. बहुत नॉलेजेबल था. दिनेश संघवी, रोटरी खामगांव. सर बढ़िया मजा आ गया. Anand का best session. Thank you so much. Patrika sir, the way you explain Rotaract and activities, the best. वेलकम. अच्छा हो गया आपने सजेशन ले लिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो गया वो. एक्चुअली ये सबके लिए. अभी सर ने जो बोला ना, आनंद सर ने, अपन खुद का लिमिटेशंस अपन बांधते हैं. We don't try to go ahead. It is a classic example
example, if you stretch yourself, what you can achieve in life. Yes, yes. Yes, Thank you, yes. sir. Very true. Shantanu bhai. Chalo, Shantanu, everybody, see you. Bye Yeah, bye. bye bye. Bye bye. Thank bye, you, bye. thank you, thank you, Rudra thank and you. Ankita, best. बहुत This is a अच्छा good था. Bye. session for Shantanu all of bhai, us. thank you for Have the a great valuable remaining information. Chalo, bye Chalo, bye bye. everyone. Thank you, DGN sir. होने दो सबको ये. भाई होस्ट को चलो, एंड कर देना congratulations to all Rotary Club of Khamga members. मैंने क्या Congratulations. अरे Adnan bhai, congratulations बधाई कृष्णा हो. साहब, सचिन भाई को congratulations. Thank you Krishna bhai, Krishna तुमको भी. bhai. Thank you. तुम्हारी मेहनत थी पूरी. Thank you so much to अरे both the नहीं MOC, सभी Rinda थे. and Ankita had सबसे done a बड़ा great थैंक यू. job एक here. दिन में 7 कोलैबोरेशन सर ने भाई ने गा दिए. अरे भाई, my pleasure to be a part of this. वृंदा, अंकिता, वंडरफुल एमओसी. उज्जवल, Thank you. co-host. I think let's end this because Yes. We have to hand over the Zoom link to some other club by 4:30. It's 4:22. So, Bye bye all. host, please. It was a best and wonderful session. Bye bye. Bye bye. वृंदा कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं बोल रही थी होस्ट प्लीज एंड द मीटिंग, ऐसा तो सब अपने आप कट हो जाएगा. अच्छा. Host, Host should हाँ. meeting. चलो बाय बाय. नेशनल एंथम डाउनलोड करने का